हाँ देखो नंबर 1 फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर वी कांट इंटीग्रेट डायरेक्ट you know in 10 square x we replace 10 square x by sec square x minus 1 and then we integrate because we know integration of sec square x we do not know integration of 10 square x correct follow Yes, it sir. same way we cannot integrate cot square x direct but we replace cot square x first by formula cosec square x minus 1 and then after we integrate cosec square x because we know its formula it is minus cot x. Like that here integration sine square form sine square x मान लो sine square x ही है ये तो integration of sine square x you cannot direct write. So what we do first we write its multiple form. We know 1 minus cos 2x is 1 minus 2 sine square x. Write down at corner one formula first. What is formula? 1 minus cos 2x is equal to 2 sine square x. So that sine square x is 1 minus cos 2x whole divided by 2. All clear? So Yes, sir. therefore, what here sine square of 2x plus 5, which we can write by this formula, 1 minus cos twice of 2x plus 5. That if you take 2 inside, then it will be 4x plus 10 and whole divide by 2. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. After then we separately integrate. See, first integration of 1 by 2 dx. 1 by 2 outside and integration 1 is x. So x by 2. Clear? First term. Yes, sir. Second term, minus half put outside and integrate cos of 4x plus 10. Now we know integration of cos x is minus sin x. Okay, sin x, not minus. Derivative of cos is minus sin. So be careful. Yes, sir. Integration of cos 4x plus 10, we write sine of 4x plus 10 and divide by what? Divide by 1/4. coefficient of x. You forget it. Okay, sir. You know special cases, Yes, sir. three Yeah. special cases we have done. Yes, sir. So the first special case is what? If we know integration of small fx dx is equal to capital Fx plus c, then integration of f of ax plus b dx, f of ax plus b dx should be 1 upon a into capital F of ax plus b plus constant c or c dash whatever you write. But Yes, what sir. thing is integration of function f, same function, but the co x instead of x now linear function ax plus b. So we integrate just like our sin x. I mean just like our cos x, and we write sin x. So that's for sine of ax plus b. But we have to put outside 1 upon coefficient of x. That is 1 upon a. એટલે 1 upon 4. આ બધું આપણે અગાઉ કરી ગયા છે પણ તમે યાદ નથી રાખતા કાં તો તમે સિરિયસલી એને મુલવતા જ નથી કે ભાઈ આ છ એમ નહીં ચાલે ભાઈ કારણ કે એકનું કામ બીજામાં બીજાનું ત્રીજામાં આવ્યા જ કરવાનું છે આગળ ને આગળ ભાઈ તમે પાછલું ભૂલતા જાવ ને આગળનું નવું આવે તો અમને હો સમજાવવાની અઘરું પડે તરત ઓન ધ સ્પોટ અહીંયા સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે માઇનસ હાફ એમને એમ મૂક્યું પછી
ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos 4x plus 10 તો sin 4x plus 10 તો લખી દીધું, પણ પછી જેમ ડેરિવેટિવમાં 4x plus 10 નું ડેરિવેટિવ કરીને 4 મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા ને ચેઇન રૂલથી, તો અહીંયા એ 4x plus 10 નો જે x નો કોએફિશિયન્ટ 4 છે, બીજી રીતે જુઓ તો ડેરિવેટિવ ઓફ 4x plus 10 એ ડિનોમિનેટરમાં લખવાનું છે. આમ બોલો, હવે તો ક્લિયર થવું જ જોઈએ. Yes, sir. Clear. તો નાવ Yes, વી sir. હેવ હા એની પ્રોબ્લેમ અગેન, કારણ કે હજુ આગળ એવી જ બધા ટાઈપના No, sir. સમજવાનું છે. No, sir. તો x by 2 minus 1 upon 8 and sine of 4x plus 10. બોલો, it's okay. Yes, sir. Yes, sir. ફરીથી જોવું હોય તો જોઈ લો, સમજમાં આવે છે બરાબર? જો ફરીથી હા, sir. એકવાર રિપીટ કરું છું. હમ. સાઇન સ્ક્વેર ઓફ 2x પ્લસ 5 આવે એટલે આપણે ફોર્મ્યુલા કઈ લેવાની, મલ્ટિપલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું. એટલે સાઇન સ્ક્વેર થીટાનું તમે લખો છો તે રીતે 1 માઇનસ કોસ 2 થીટા બાય 2. એવું જ આ સાઇન સ્ક્વેર 2x પ્લસ 5 માની લો કે થીટા છે, તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા જ થયું કહેવાય કે નહીં? એટલે આપણે તરત લખી દેવાનું 1 માઇનસ કોસ ટ્વાઇસ થીટા. હવે ટ્વાઇસ થીટાનો અર્થ અહીંયા ટ્વાઇસ ઓફ 2x પ્લસ 5, એટલે મેં 2 અંદર લઈ લીધા, એટલે 4x પ્લસ 10 અને હોલ ડિવાઈડ બાય 2. પછી ઇન્ટિગ્રેશનનો સવાલ આવે છે. એમાં પહેલી ટર્મમાં 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન x થઈ જાય ને પેલો હાફ બહાર નીકળે તો હાફ x. પછી બીજી ટર્મની વાત આવે તો તેને બી હાફ તો લાગુ પડશે જ, એટલે માઇનસ હાફ બાર અને ઇન્ટિગ્રેશન cos 4x પ્લસ 10. હવે અહીંયા જે રૂલ આવી ગયો છે તેને હવે તમારે પચાવવાનો છે. તો કે cos નું ઇન્ટિગ્રેશન sin થાય તે તો લખવાનું જ છે, પણ જે 4x પ્લસ 10 લિનિયર ફંક્શન છે બ્રેકેટમાં, એનું ડેરિવેટિવ નીચે લખવાનું છે 4. બોલો, કોઈ પ્રોબ્લેમ હવે નહીં હોવો જોઈએ. No, sir, nothing problem. नहीं सर, नहीं है. ओके, आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे आ जाओ. हाँ बस बस बस, बहुत हो गया, ऊपर क्वेश्चन रखो. तो इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 3x इंटू कॉस 4x dx. अब क्या पता दिखने का है, वो साइन 3x कॉस 4x दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है. आप प्रोडक्ट रूल तो है नहीं आपके पास, इंटीग्रेशन का कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, तो हमको क्या सोचना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इंटीग्रेशन कर सकोगे. और आपके पास फॉर्मूला है जो ट्रिगो में पिछले साल की थी. कौन सी फॉर्मूला में याद दिलाऊं? नहीं याद हो तो Yes, sir. सिंपल पेज में, सादा पेज पे लिखते जाओ, मैं बताऊं. वो 4 फॉर्मूला थी मेरे पास. हाँ. मान लो कि आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ऐसा लिखो. तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म हो तो हम सम सन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू, मैंने बोला अभी अभी, वो बराबर ध्यान से लिखो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. लिख दिया आप लोगों ने? बोलो. Yes, sir. अभी दूसरी फॉर्मूला Yes, sir. लिखो, दूसरी भी लिखो, 4 फॉर्मूला लिख दो. हाँ, टू, sir. हाँ, सेकंड फॉर्मूला ये है कि 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा अगर हो तो उसका आंसर आता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. फिर से एक दफे बोलता हूं, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फॉर्मूला आएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. थर्ड फॉर्मूला 2 cos alpha cos beta, 2 cos alpha cos beta, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू cos of alpha plus beta प्लस cos of alpha minus beta, cos of alpha plus beta प्लस cos of alpha minus beta. हो गया बराबर? Yes, sir. और चौथा नंबर 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा
साइन बीटा इक्वल टू, तो लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, पहली टर्म आएगी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस सेकंड टर्म होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके सर। हो गया, बट सबको पता चल गया। देखो अच्छा। फिर से देख लो, पहली सर। फॉर्मूला कौन सी है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा की, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है, बराबर, चेक करते जाओ। Yes. दूसरी फॉर्मूला है 2 कॉस अल्फा देन साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, तो आंसर है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तीसरी फॉर्मूला 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एंड लास्ट वाली फॉर्मूला 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो आंसर होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। यस सर। हो गया, बराबर। चलो, तो अभी जो ये सम है इसमें क्या दिखाई रहा है, साइन 3x कॉस 4x, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा जैसा है ना? यस सर। हाँ, फौरन हाँ, सर। जवाब देते रहो। तो उसका मतलब इसके बगल में 2 नहीं है, 2 तो चाहिए ही चाहिए, हाँ सर। तो 2 लिखा और बाहर मैंने हाफ लिख दिया, तो बैलेंस भी हो गया। हाँ सर। हाँ, अभी हम हाफ को एज इट इज रखेंगे, फिर मैं इंटीग्रेशन में जाऊंगा तो वहां 2 साइन 3x कॉस 4x है। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेगा, जो अभी अभी हमने 4 फॉर्मूला लिखाई थी, उसमें कौन सी नंबर की फॉर्मूला इसके साथ मैच होती है वो देख लो पहले, और बताओ कौन सी फॉर्मूला उसके सर साथ पहले वाली। पहले वाले, पहले वाले। बराबर, तो 2 पहले साइन वाले अल्फा। बराबर है, बराबर है। पहले वाले के हिसाब से जो लिखोगे, तो पहले हमको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखना है, मतलब साइन ऑफ 3x प्लस 4x लिखना पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो वो हो गया साइन 7x हुआ, बराबर है। फिर प्लस साइन होती है, और उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा का मतलब साइन 3x है, 3x वाला अल्फा है, और बीटा वाला 4x है, तो 3x माइनस 4x लिखा जाएगा, उसका मतलब माइनस x। यस सर। तो वो क्यों आई मैंने एरो करके बगल में बताई है, वो अभी अभी हमने कर दिया। चलो आगे बढ़े, उसके बाद वाला स्टेप, हाफ इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन 7x, एंड जो साइन माइनस एक्स साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकलेगा, तो साइन 7x माइनस साइन x हो गया। यस सर। हाँ, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। हाफ इंटू, बोलिए, कॉस साइन 7x का होगा माइनस कॉस 7x, और 7x का कोएफिशिएंट 7 है ना, वो आ गया, 1/7। यस। जो अभी अभी मैंने बताया आगे। प्लस, यस सर। प्लस क्यों आया प्लस, कि वो माइनस साइन एक्स है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता Cos है x होता है। इंटीग्रेशन में, तो वो प्लस कॉस एक्स हो गया, बराबर है। यस सर। अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 और प्लस सी, तो माइनस कॉस 7x/14 हुआ प्लस कॉस x प्लस सी, ये आंसर है। यस। बिल्कुल इसी टाइप का सम मैं बाद में देने वाला हूं आप लोगों को घर पे से होमवर्क के लिए, पता चला? तो ये ध्यान से देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, यस सर। बाद में मैं नहीं बताने वाला। ओके सर। चलो तीसरा नंबर, थर्ड क्वेश्चन नंबर, वो पेज नंबर 41 पे है। पंकज थम गया, मैंने यहाँ से आगे कर आगे दिया नहीं पेज। राइट, स्क्रीन पर नहीं देखा। हाँ, आई। आ गया अभी तो, पेज सर आ यहाँ गया, से आ आगे कर जाएगा, दिया है। चलो आया। तो cos 2x cos 4x cos 3x, देखो 3 फंक्शन, 3 प्रोडक्ट टर्म हो गई। अभी अभी हमने 2 प्रोडक्ट टर्म की तो बात की थी नहीं, इसी टाइप का सम आप पिछले साल करते ही थे 12 11 स्टैंडर्ड में, है पता कि नहीं है? ध्यान से करते ही नहीं यस तो सर, कहाँ से पता है। आएगा? 2 टर्म को हम अभी उसके बेस पे ही जाना है यहाँ पे। सर 2 टर्म को लेके फिर अभी अप्लाई आपको पता चल गया, राइट। तो 3 टर्म्स में से हम 2 टर्म साथ में लेंगे,
और जैसे अभी अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ओके Yes, sir. अच्छा, तो मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने हाफ लिख दिया बाहर, क्यों, हमको चाहिए टू टाइम्स चाहिए, और मैंने 60 में लिया 2 cos 4x cos 2x cos 6x को सेपरेट रख दिया, इनटू करके बाहर रख साइड पे रखा। Hmm. ओके सर। पता चला ना? Yes, sir. हाँ सर। अभी कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी आप बोल दो। हमने 4 फॉर्मूला अभी अभी दिया था, उसमें से कौन सी फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे? थर्ड वाली, थर्ड वाली फॉर्मूला को पढ़ लो पहले। 2 cos alpha अल्फा cos beta प्लस plus 2 cos बीटा alpha plus प्लस beta cos plus अल्फा cos माइनस alpha बीटा। minus beta। हाँ, बस इसी तरह यहाँ सोचो, यहाँ अल्फा 4x सर- है, बीटा 2x है, तो cos of 4x plus 2x plus cos 4x हाँ, minus cos 2x of हो गया। 4x minus 2x। हाँ, और बाहर जो है अब cos आ जाएगा 6x, cos 6x। Cos 6x हाँ। dx. cos Yes, sir. 6x plus cos 2x हो जाएगा ब्रैकेट में, और इसके हाँ, sir. पीछे Yes, sir. इंटू करके cos 6 है वो उसको भूलना मत। अभी cos 6 इनसे साथ प्रोडक्ट कर लो, अंदर cos स्क्वायर Okay. 6x हो गया, और cos 6x है ना? to cos 2x। हाँ, हाँ सर। फिर cos Cos 6x 6x, cos 2x। अभी जो सेकंड वाली टर्म है उसके लिए हमको 2 चाहिए ना आगे, यस तो सर। खीसे में डालेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो बाहर हो गया 1/4, R और 2 इनसाइड में प्रोडक्ट करो तो 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos cos 6x 6x cos 2x। चलो यहाँ ठहरो, फिर और एक फॉर्मूला आ रही है, वो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ तक वहां तक तो आपको दिमाग में होगा ही नहीं, क्योंकि आप टोटली ब्लैंक माइंड लेके बैठते हैं। चलो लिखो, मैं लिखवाता हूँ वो 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला थी पिछले साल, यस सर, याद है। याद आ गया? याद थी सर। सर याद है, मतलब अभी भी बोले नहीं आप सर। हाँ, वही तो बात है, याद नहीं आ रही थी बस, लेकिन याद दिलाता है तो याद आ जाती है ना, ऐसा ऐसा किया था हम लोगों ने। हाँ, तो वो फिर से यहाँ याद रखने का है भाई कि 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा। पहले हमने लिख दिया था 1 माइनस cos 2 थीटा, तो उसका आंसर आता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही ये 2 cos स्क्वायर 6 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos डबल ऑफ 6x, डबल ऑफ 6x मतलब 12x। अब पता चला कि कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। No, sir, no problem. तो याद आ गया, 2 cos स्क्वायर 6 के हाँ, 6x को हम लिख सकते हैं ये बराबर, और उसके Yes, sir. बाद जो है सेकंड टर्म वो तो आपको पता ही है, 2 cos अल्फा sir, cos formula बीटा का apply टर्म है, तो उसका cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा Alpha minus फॉर्मूला जो beta. अभी अभी हमने यूज किया थर्ड नंबर वाली वही है। Yes. तो cos ऑफ 6x प्लस 2x कर दो तो 8x हो गया, प्लस cos 6x माइनस 2x कर दो तो cos 4x हो गया, और सभी का इंटीग्रेशन आराम से आप लिख सकोगे। देखो, तो इसीलिए जब भी ऐसा प्रोडक्ट आ जावे तो उसको समेशन या डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो और बाद में इंटीग्रेशन कर सकोगे। जैसे कि यहाँ है, देखो 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 का हो गया x प्लस cos 12x का आप लिख सकते हैं sin 12x अपॉन 12, कोफिशिएंट ऑफ 12 और फिर cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 8x Sin 8x by 8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x sin by 4x और by बाहर 4. बाहर वाला 1/4 हर एक के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। इसे ब्रैकेट में Yes, sir. ध्यान से करना, प्लस c एज यूजुअल। अभी नंबर 4 जो दिखते हैं उसको बस ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो, नहीं आगे मत जाओ, आगे जाओगे तो उसका सस्पेंस खुल जाएगा। हाँ, अभी क्या है देखो, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको कैसे करेंगे आप लोग सोचो। साइन क्यूब 3x प्लस 1, मत मान लोगे इंटीग्रेशन साइन क्यूब x ही है, यहाँ पे 2x प्लस 1 को साइड पे छोड़ो, अभी साइन क्यूब x है तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे? जैसे साइन स्क्वायर x का अपने पास कोई ट्रिक नहीं है इंटीग्रेशन करने की, तो हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल फॉर्म में, तो उसका आंसर आ गया बाद में, बराबर है ना? अभी ये साइन क्यूब नंगा आया, तो साइन क्यूब का क्या करेंगे? आपने देखा है कोई ऐसी फॉर्मूला के जिसमें साइन क्यूब आता था पिछले साल?
हो तो बताइए यस सर, कौन सी फॉर्मूला। 3 sin x इक्वल 3 sin x minus 4 sin cube x। हाँ साइन 3x में था, ये यहाँ दिखता ही है आपको, तो आराम से बोल देगा। चलो कोई बात नहीं, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। तो इसमें साइन क्यूब x छुपा है। पहली टर्म साइन 3x है, वो x का मल्टीपल है 3 टाइम, और दूसरा भी, दोनों टर्म का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर हम साइन क्यूब x को रिप्लेस कर देंगे। याद आया, बराबर ध्यान में आया। Yes. यस सर आया। अच्छा तो जरा ऊपर लो, साइन 3x में से मैंने कैसे साइन क्यूब x निकाला, वो साइड पे देखो पहले, देखो साइड Yes, वाला sir. ब्रैकेट करके लिखा है ना, वहां देखो पहले। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, वो अपनी फॉर्मूला है। इसमें से 4 साइन क्यूब x को साइड पे रखो और अदर टर्म अदर साइड कलेक्ट करो, तो मैं लिख सकता हूँ ना 4 साइन क्यूब x बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x। यस सर लिख सकते हाँ, हैं। और बाद में हमको चाहिए साइन क्यूब x, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो गई साइन क्यूब x की। तो वो वहां लिखनी चाहिए हमको, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। Yes. Sir. x की जगह Yes. क्या लिखना है हमको, 2x प्लस 1, दूसरा कोई 2x चेंजेस plus कोई 1. नहीं। तो मैंने Right. क्या किया, देखो आगे 1/4 जो है डिनोमिनेटर में वो लिख दिया, और इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट में 3 टाइम साइन x है, तो हम लिखेंगे 3 टाइम साइन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x है, तो x को डबल 3 टाइम कर दिया, ट्रिपल टाइम, तो वो 2x प्लस 1 का ट्रिपल टाइम क्या होगा, 6x प्लस 3। यस मल्टीप्लाई करके लिखना है, पता चला अभी। Yes. हाँ सर। हाँ, अभी इंटीग्रेशन की बात सोचिए। चलो पहली वाली टर्म का बात करें, 3 बाहर निकाल दो तो 3/4 हो गया। इंटीग्रेशन यस सर साइन sin x 2x प्लस 1 है, तो क्या होगा, minus cos x माइनस कॉस ऑफ 2x minus प्लस cos 1 x डिवाइड बाय Yes. 2 x का coefficient of x। हाँ, फिर वो 1/4 बाहर था, वो अंदर लेके सेकंड टर्म के साथ चलो आगे, माइनस 1/4 होगा, Yes, sir. यस सर और साइन 6x प्लस 3 का माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 हो जाएगा। कोफिशिएंट। यस हाँ, अभी आगे बढ़े तो वो माइनस 3/8 हो गया, 3/4 और 2 मिला दोनों, बराबर प्रोडक्ट Yes, करके sir. देख लो, तो आ गया बराबर। और वो माइनस हाँ, माइनस sir. प्लस होगा, और 1/24 cos 6x प्लस 3 हो जाएगा। बस ऐसा ही रहने दो, अभी आगे मत देखना, पीछे आओ। बस अभी फिफ्थ सम की बात सोचो। देखो हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा नया ट्रिक आएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम में कठिनाइयाँ आती ही रहेगी। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पक्की किया, और दूसरी बात, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल फिर से नहीं घर पे गिनोगे, तो आगे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि ये जो जो सम हो रहा है, उसका मैं एक्स्ट्रा सम तो देने वाला हूँ, अभी आज भी दे दूंगा। पिछले टाइम भी हमने दिया था, हमने सॉल्व भी किया था, आज भी देने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से वो करने का है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, तब पता चलेगा, नहीं तो ये इंटीग्रेशन ऊपर से जाएगा। ओके सर। Yes. हाँ, बहुत डेंजर टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रही। पिछले साल का भी थोड़ा फॉर्मूला वाला करना है, ये साल वाली तो है ही, तो ये सब एक साथ करोगे तो आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ सम आया और कैसे करें। देखो अभी 5th वाला सम देखें, इसमें इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx है। आपको ट्रिक लगाओ जो अगर लगाना चाहो तो, और मेरे को बताओ सर होल कैसे क्यूब किया बाहर निकाल लेंगे सर। है। सर होल क्यूब कर देंगे किसको? दोनों को, हाँ, sin मतलब x cos x होल क्यूब कर देंगे। होल क्यूब किया, फिर क्या करोगे? क्यों सर किया? मल्टीप्लाई में आ गया है तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करके बाहर आउटसाइड में 1/2 लिख सकते हैं। 1/8 लिखना पड़ेगा, 2 क्यूब होगा ना। यस सर क्यूब है हाँ। हाँ, तो बाहर 1/8 लिखना पड़ेगा। ओके, फिर क्या करोगे? फिर सर वो फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या, Sin- कौन सी फॉर्मूला? 2 साइन sin अल्फा cos बीटा वाली। मतलब कि वो प्रोडक्ट में से सम वाली। यस सर।
वो तो है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद है। 2 sin x cos x की फॉर्मूला है, वो पता ही होना चाहिए। आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, क्यों फॉर्मूला नहीं पता? 11 में आई गई है। किसकी फॉर्मूला 2 sin x into cos x है? नहीं पता। अभी मैं दूसरी ढंग से पूछूं, बोलिए sin 2x का क्या है? sin 2x की फॉर्मूला 1 बोलो। क्या पता है, क्या पढ़ा है उन लोगों को? यही प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे लोग पढ़ते ही नहीं, फॉर्मूला याद ही नहीं करते। sin 2x की फॉर्मूला है 2 sin x cos x। नहीं पता यार? पता है सर। हाँ अभी पता है, जरूर। बस खबर तो अरे यार क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सब टीचर बैठे हैं, आपको सुनते रहते हैं कि क्या क्या करते हैं ये लोग। जरा ढंग से जवाब दिया करो यार, ये तो याद आना ही चाहिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या क्या फॉर्मूला आई थी पिछले साल, आप लोग लिस्ट बनाते नहीं हैं। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद रखी तो। यहाँ भी यही गड़बड़ हो गई। हाँ पंकज फिर गायब हो गया। नहीं सर, यही हूँ। हाँ ले स्क्रीन पे लाओ ना, स्क्रीन आ रहा है, पे आ रहा निकल है। गया। सर वो बैटरी लो हो गई तो हाँ लो हो गई, 5 साथ में लेके बैठ भाई। ये तो प्रॉब्लम है, मेरा भी पिछले टाइम यही था। 1 मिनट सर, बस चार्ज में लगा दिया यार। हाँ चार्जर लगा दिया ना, बस तो हो जाएगा। अभी तो हाँ। 1 मिनट बैठेंगे। वहाँ बैटरी लो हो गई। इसके मोबाइल की पंकज की नहीं, इनकी तो बैटरी पावरफुल है। ये लोग तो पावरफुल है, मेरे बच्चे तो पावरफुल है। लैपटॉप की बैटरी गायब हो जाती है ना कभी कभी। थोड़ा तेल तो आएगा ही। गरम हुआ गरम होकर तेल बाहर निकला देखो। ये सर अच्छा है, ये ठंडा है सर। हाँ गरम गरम पोहा खाना हो, उपमा खाना हो, तो ये जो सर्विस वाले हैं उसको जो 2-3 बजे यहाँ आना है रहना है, तो उसको तो जरूरत ही है। भूसा पाता कब कितना खाएगा? यही अच्छा रहेगा ना यार। दोपहर का खाना घर पे जाओगे तो 3 बज जाएगा। चल भाई पंकज स्टार्ट हुआ क्या? सब म्यूट करके बैठ गए। हाँ सर, हो गया। आप लोग કેમનું છે ભાઈ? આપણો પાવરની સપ્લાય કટ થઈ જાય, જોતા રહેજો। हाँ ये तो बहुत पीछे आया। आज की जो रखे, हाँ ये रहा, बस बराबर है। हाँ तो आपने बोला 2 sin x cos x होल क्यूब। ऊपर जाने दे, ऊपर जरा। हाँ बस बस। अभी देखो क्या हो रहा है। 2 sin x cos x की फॉर्मूला है sin 2x और पावर होल क्यूब है तो sin क्यूब 2x हो जाएगा। yes हाँ, और आज ही हमने अभी अभी फॉर्मूला बताई थी, याद होगा तो। कौन सी? sin 3x वाली। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बगल में जो पेज आप लोगों ने लिखा Yes, है sir. वो ठोके थिए थोड़ा लिखा है, इसमें लिखते रहो। sin 3x की फॉर्मूला 3 sin Yes, x sir, we do. माइनस 4 sin क्यूब x, और इसमें लिखो कि sin क्यूब x क्या होता है, तो वो फौरन यहाँ कांटेक्ट हो जाएगा। 1/4 इंटू ब्रैकेट 3 sin x माइनस sin 3x। हुआ क्या नहीं अभी? यस सर, हुआ। बस तो वैसे ही sin क्यूब 2x लिखना है तो 1/4 होगा, और इनसाइड ब्रैकेट में क्या होगा? 2 3 sin. sin 2x, x की जगह 2x, एंड माइनस sin 3x, तो 3 टाइम 2x मतलब 6x। बोलो Yes. आया? आया yes सर। sir. हाँ, अब क्या करें? देखो 1/4 को भी बाहर निकाल दो तो 1/32 हो गया।
अब हम टर्म वाइज इंटीग्रेशन कर देते हैं। 3 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन लिखो तो माइनस कॉस Cos 2x अपॉन 2 आएगा। 2 माइनस करके दूसरा टर्म है साइन 6x, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन 6 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, -3/64, ऊपर -3 डिवाइड बाई 64 cos 2x, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 6x एंड 32 जो आउटसाइड है वो 6 के साथ प्रोडक्ट में 192 मिलेगा आपको, 22 ओके बराबर। Yes. यस सर हाँ, अभी देखो हमने ये जो आंसर लाया, हम जो करके लाए, तो वो कैसे करके लाए कि साइन एक्स कॉस एक्स को साथ में मिला के मल्टीपल फॉर्म में गए, इसके बाद साइन क्यूब 2x आया तो उसको भी मल्टीपल फॉर्म में फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया, तो इजी हो गया, वो आंसर मल्टीपल फॉर्म में ही आए। मल्टीपल फॉर्म को पहचानते हो ना, मल्टीपल फॉर्म का मतलब cos 3x cos 4x cos 5x cos अल्फा x एम, समझे। ओके सर यस हाँ Yes, sir. हाँ, और एक तरीका और भी है ये इसको सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर पावर फॉर्म में आएगा, तो कोई ऐसे भी गिन सकते हैं। देखो मैंने अभी करके बताया और करके मैंने लिखा है, ऊपर जाने दो, बस बस बस। देखो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है, तो मैंने इसमें साइन एक्स को सपोज कर दिया। देखो क्या होता Yes, है, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, cos x तो cos yes x sir dx की जगह dt लिखेंगे। तो अभी जो ध्यान से देखोगे तो साइन क्यूब एक्स तो है ही, फिर cos क्यूब एक्स है, इसमें से एक cos लेगा, लेके dx के साथ हम dt लिख देंगे, तो बचा हुआ cos स्क्वायर एक्स, उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख ही सकते हैं। यस सर जो मैंने क्या बोला वो सुनो पहले ध्यान से, साइन क्यूब एक्स को ऐसा ही रखो और कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स जैसा सोचो, तो कॉस Yes, एक्स sir. डी एक्स की जगह हम डी टी बाद में लिखेंगे, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बचा है उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। आया? यस सर आया देखो, सर देखो इसीलिए मैंने क्या किया, देखो इसके बाद वाला स्टेप, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक कॉस एक्स डी एक्स साथ में लिखा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स की जगह टी लिख दो जो हमने सपोज किया था, तो वो टी क्यूब हो गया, Yes, sir. ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ, और जो कॉस एक्स डी एक्स है वो डी टी हो गया, है ना। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, हाँ, सर। अब प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, टी क्यूब को 1 माइनस टी स्क्वायर साथ, तो हो गया टी क्यूब माइनस टी 5, टी रेज़ टू 5 मतलब, बराबर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर बराबर हाँ, उसका इंटीग्रेशन साइड में लिखा है, देख लो, यस सर टी 4/4 माइनस टी 6/6 प्लस टी, और टी की जगह वैल्यू लिख दो, टी जो हमने सपोज किया था वो साइन, तो ये आंसर आया पावर फॉर्म में। आप कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये गलत नहीं है, उसको अब हम कन्वर्ट करें तो वो मल्टीपल फॉर्म में वही आंसर पाओगे आप। हाँ, करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जो बताया तो वो समझ लो कि उसको दो तरीके से गिना जाता है, एक तो मल्टीपल फॉर्म में भी आंसर आ सकता है और ये पावर फॉर्म में भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने ऐसी, मैंने जो अभी अभी आइडिया बताई वैसे ही आपने स्टार्ट किया, मतलब कि साइन एक्स टी लिया और ऐसा ऐसा करा, तो आपको आंसर आ गया वो पावर फॉर्म वाला, और पीछे बुक में आप देखोगे पलटा के तो वहाँ मल्टीपल वाला आंसर दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, ये दोनों करेक्ट है, ओके सर तरीका अलग अलग है, सोचने की बात अलग अलग है। पता चल गया? अभी कोई ऐसा Yes, sir. हाँ, देखो अभी देखो यहाँ आंसर साइन फॉर्म में आया, अगर मैं साइन एक्स की जगह कॉस एक्स सपोज कर लेता, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स, जैसे Cos साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ माइनस साइन है, माइनस साइन एक्स डी एक्स है, तो वो भी तरीके से हो Yes, sir. सकता, तो आंसर आता कॉस के फॉर्म में, वो भी मैंने करके बताया है। आगे देखो और करके, और तीसरी तरीका देखो क्या लिखा है, कॉस एक्स Yes. बराबर टी सपोज किया, ठीक
तो उसका हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स। प्लस माइनस हाँ, तो equal to जैसे dt. हमने साइन क्यूब को वहां रखा था, है ना, Yes. और कॉस क्यूब Yes, को sir. हमने स्प्लिट करके कॉस स्क्वायर कॉस लिखा था, वैसे ही यहाँ कॉस क्यूब को ऐसा रखो, और जो साइन क्यूब है उसको एक साइन स्क्वायर लिखो, फिर साइन लिखो, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख देंगे। Yes, sir. हाँ, और जो एक साइन स्क्वायर एक्स छूटा पड़ा है उसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो हुआ कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स, बोलिए। Yes. Yes, sir. इसके बाद जो सपोजिशन किया था ना, cos x की जगह t, वो लिख देते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, वो t क्यूब होगा, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अभी मैं माइनस अंदर भी ले जा सकता हूँ, कैसे कि वो अंदर वाली टर्म इंटरचेंज कर देंगे और टी क्यूब को Yes, प्रोडक्ट में ले लेंगे, तो t5 पहला आएगा माइनस टी क्यूब आएगा, बोलो हो गया। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है सर, तो पता ही है आपको, टिक 6/6 माइनस टी 4/4 प्लस ई। अब आप टी की वैल्यू लिख दो, तो क्या लिखोगे, cos x लिखेंगे, ऊपर जाने दो, ऊपर Yes. जाने दो, तो हो गया cos 6/6 माइनस cos 4x/4। आया ना बराबर समझ में? Yes, sir. देखो ये 3 तरीके से गिन सकते हैं, आंसर सभी में अलग अलग दिखाई देगा, इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको ध्यान में आना चाहिए। हो गया? Yes, sir. ध्यान में आ गया. चलो अभी 6 वाला नंबर देखो, वो पहले हमने एक कॉस वाला कर Yes, गया sir. है, वही है। तो इसमें भी 3 टर्म की जगह 2 टर्म बना दो, पहला कंबाइन कर दो, 2 को चाहिए तो 2 Yes, अंदर sir. ले लो, बाहर हाफ लिख दो, ये सब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. हाँ, अभी आपको फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, आपने साइड पे नोट की है फॉर्मूला सभी, तो कौन सी वाली Yes, sir. फॉर्मूला इसमें मैच होगी वो आप बताओ। Cos alpha minus beta अरे ये minus कहाँ cos आ गया, alpha. ये कहाँ आ गया, कहाँ गड़बड़ करता है? कौन सा नंबर वाली फॉर्मूला, वो ही बोलना है। 1 Four number, sir. Four. फोर्थ वाली बराबर है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा है वहां लिखा, तो उसका जो सॉल्यूशन है, आंसर है समेशन फॉर्म में, तो वो क्या होता है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा Minus beta. माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यस, तो ऊपर जाने दो, देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं, जाने दे ऊपर। हाँ बस बस बस, हाफ, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और इसके बाद मैंने फॉर्मूला जो आप लोगों ने बोला है वही यूज किया है, cos ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर, तो x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, लेकिन cos इवन फंक्शन है तो cos x ही रहेगा, फिर माइनस Yes, sir. साइन है और cos ऑफ एडिशन है, तो x एंड 2x का एडिशन 3x है, तो देखो ब्रैकेट Yes, sir. में cos x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x dx ऐसा हुआ। ये Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. हाँ सर बराबर. हाँ, अभी क्या हुआ है, सेपरेट कर देते हैं हम, हाफ बार है, इंटीग्रेशन, पीछे वाला साइन 3x एंड ब्रैकेट में जो पहले वाली टर्म cos x का प्रोडक्ट हो गया साइन 3x cos x dx, एक टर्म लिख दिया, फिर Yes, sir. माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन 3x cos 3x dx, बोलो हो गया बराबर? Yes, sir. sir. अभी दोनों टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, तो जो पहली वाली टर्म है उसको 2 चाहिए, Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मैंने लिखा 1/4 इंटीग्रेशन Yes, में 2 साइन 3x cos x dx आ गया बराबर। Yes, sir. Yes, sir. आ गया. अच्छा, फिर वो देखो साइन 3x cos 3x की बगल में भी 2 चाहिए, अगर 2 हो तो वो फॉर्मूला हो जाती है, याद आया अभी? Yes, sir. कौन सी फॉर्मूला? Sin 2x. हाँ, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, साइन 2 थीटा, इसकी फॉर्मूला Yes. 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ 2 साइन x कॉस 3x होगा, तो साइन डबल ऑफ 3x मतलब साइन ऑफ 6x होगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए बाहर 1/4 है। पता चल गया सबको? Yes, sir. आगे जाने दो। 1/4 इंटीग्रेशन, वो ब्रैकेट वाली टर्म है 2 साइन 3x cos x, उसका समेशन फॉर्म लगाना है ना, कौन सी वाली नंबर लागू पड़ेगी यहाँ? First वाली sir. फर्स्ट वाली, राइट। तो क्या होगा उसका,
साइन अल्फा प्लस बीटा हाँ, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा तो यहाँ कौन सा अल्फा बीटा है वो पता चला? यस सर। अल्फा 3x है, बीटा x है। चलो आगे, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा वो पता चल गया, साइन 3x प्लस x का मतलब साइन 4x Yes, प्लस sir. साइन ऑफ डिफरेंस 3x माइनस x तो साइन 2x हो गया ना बराबर? यस Yes. सर हो गया। अच्छा, फिर -1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x वैसा का वैसा ही रखा। अभी एक साथ सबका आंसर लिख देते हैं। 1/4 दोनों में है तो कॉमन निकाल के बाहर एक टाइम में लिख दिया 1/4। फिर हर Yes. एक टर्म का इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट बना दिया। साइन 4x का क्या इंटीग्रेशन होगा? माइनस माइनस साइन 4x कॉस 4x बाई 4। 4 इसके बाद साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x cos बाई 2 by 2। और साइन 6x का भी माइनस कॉस 6x बाई 6 आएगा। तो वो माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस करके लिखा है। सब Yes, ध्यान sir. में आ गया होगा। हाँ सर। अच्छा तो अभी सम नंबर 7 पे आ जाओ। yes. Concord. 7 नंबर मैं आ चुका पे जाने आगे सर। जाने दे। सर मैंने यहाँ से पेज ऊपर कर दिया है पर वहाँ आया नहीं है, ऊपर डिस्प्ले नहीं कर आया रहा है। आया नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, स्लोली स्लोली Yes. आएगा ना। आ गया, देखो ये भाई हाँ कंप्यूटर है तो वो तो थोड़ा ऐसा वैसा होता है, Yes, कोई sir. बात नहीं। हाँ हाँ आ गया ना, अभी तो आ गया ना। अच्छा अच्छा, हाँ सर। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x। अभी आपको पता ही चल गया कि ये भी वही प्रोडक्ट वाली फॉर्म की ही है बात, यस है ना? सर। उसको भी तू चाहिए तो तू आगे लिखा, बाहर हाफ लिखा, सब कुछ पता चलता है। अब जो आई वो कौन सी वाली फॉर्मूला आप यूज करोगे 1 2 3 4 में से? 4 4. वेरी गुड। अभी 4 के हिसाब से क्या लिखोगे इसमें? हाफ बार है, cos of alpha। इंटीग्रेशन 4. माइनस बीटा, मतलब कि डिफरेंस होगा पहला। बाकी यस सर। 3 फॉर्मूला में पहले में एडिशन आता है, देखो बहुत सब चेक करके समझ लो। पहले यस पहली सर 3 समझ फॉर्मूला में क्या होता है? पहले प्लस आता है, एडिशन। बाद में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पहला डिफरेंस है। अगर उल्टा करोगे तो यस सर। माइनस साइन बाहर लिखना पड़ता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो लास्ट टाइम सब कुछ आ गया था। तो यहाँ होगा कॉस ऑफ डिफरेंस, मतलब कॉस ऑफ -4x या 4x, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, माइनस बाहर निकलता नहीं है इसमें। तो कॉस 4x लिख सकते हैं -4x की जगह। पता चल गया बराबर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद माइनस कॉस ऑफ एडिशन, तो एडिशन 8 and 4 का 12 होता है तो कॉस 12x हो गया। यस अभी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन कॉस 4x क्या बोलोगे? साइन 4x। हाँ, अपॉन 4 और 4 टू द 8। देखो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ये डेरिवेटिव में कॉस का नेगेटिव हटा है। Yes. यहाँ यस सर साइन 4x बाई 8। पॉजिटिव है। हाँ, और माइनस साइन 12x बाई 12 एंड आउटसाइड जो 2 है उसको मिला दो प्रोडक्ट के साथ तो 24। 12 to the बस 20। यही अभी यस यहाँ रखो, आगे मत पे जाने देना, रहने दो। अभी देखो कि यस। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, Hmm. के बारे में आप क्या सोचोगे? एक मिनट. सर ये फॉर्मूला है। हाँ. हाँ, कौन सी फॉर्मूला है बोलिए? सर ये 10 square x by 2। Thanks. वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीके से बोला आपने। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। वैसे देख सकते हैं 2 2 कट करके साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। रूट करके जो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स लिखते हैं ना, वो 10 एक्स बाई 2 आता है। तो ये हो गया Yes. 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे इंटीग्रेट करोगे? Thanks for explaining. इसकी भी आपने फॉर्मूला बताई थी सर। कौन सी बोलिए? 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमको इंटीग्रेशन कर। हाँ हाँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 वाली सर। एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बोलो, एक्स बाई 2। हाँ ये इसके कंटेक्स्ट में x by 2। हाँ, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 Yes. ऐसा लिखेंगे और बाद Yes, में sir. इंटीग्रेशन बोले करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का?
sec x का 10x/2 अपॉन और 1/2 अपॉन इसका 1/2, तो वो coefficient। डिनोमिनेटर और 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और Yes, -1 का इंटीग्रेशन x x। प्लस c। बस अभी देख लो अंदर क्या क्या आता है। ऊपर जाने दो पेज, पंकज ऊपर जाने दे। सर यहाँ से ऊपर कर सर दिया आगे है, धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे ये क्या हो गया, શું થયું સર? पेज आगे नहीं खिसकता। हाँ अभी खिसक गया बराबर। तो ये जो हमने बात की वही लिखी है अंदर, देख लो ध्यान से। યસ સર. अभी जो नया सम आता है सेज ऊपर करो, 9th वाला सम दिखाई देना चाहिए। बस बस बस, अभी उसको सोचो। आप जैसा सोचोगे ना तभी आइडिया मिलेगी आपको। मैं ये कहने जा रहा हूँ। आदित्य राज ने लेफ्ट कर दिया ऐसा लिख रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं. आदित्य राय राय राय, हाँ वो लेफ्ट कर दिया। થયો. कहाँ એના गया? राज है सर, છે ને राय नहीं राज है। तो है, पंकज है, आयुषी है, तो राय चला गया। क्या उसके एब्सेंट पूरा जाए? क्या करे बोलो? राय तो है। अरे अभी गया। लेफ्ट अभी आ लेफ्ट जाएगा होता सर, है ना, इसीलिए उसका ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी आ जाएगा सर। अला मैं यहाँ कब से बैठा हूँ और आप लोग लेफ्ट जा रहे हैं, ये क्या है? સર એ ગામમાં એકચ્યુઅલી ગામમાં છે તો નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ આવે એટલે. ओके ओके, चले जो है वो अपना आगे बढ़े। देखो इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x लिखा है, तो उसको किस तरीके से आप करोगे बोलो? नए नए सम तो इतने आएंगे कि आप देखते देखते भी थक जाओगे। बहुत से सम है भाई, आइडिया आनी बहुत जरूरी है। सर नो आइडिया प्रैक्टिस करोगे तो आएगी आइडिया। सर। ओके सर। बोलो Yes, sir. आइडिया बताओगे आप? एक ये मिनट. 9th वाला सम में कोई आइडिया आपको सुझाई रही है? बोलिए। नहीं सर। नहीं आती है, बराबर। चलो तो मैं एक बात बताऊं, नीचे जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, उसका Yes, sir. पार्टनर 1 माइनस कॉस एक्स, उसको अपर लोअर में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर Okay, वाली sir. कॉस एक्स टर्म है उसके साथ 1 माइनस कॉस एक्स का प्रोडक्ट करो, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स के साथ भी 1 माइनस कॉस एक्स प्रोडक्ट करो। तो कोई फर्क नहीं पड़ने Yes. वाला, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टर्म हमने मल्टीप्लाई। कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ अभी देखो क्या होता है प्रोडक्ट करके। ऊपर वाली टर्म क्या हो गया? cos x into 1 minus cos x cos x माइनस, प्रोडक्ट कर दो, cos x माइनस cos x cos स्क्वायर, minus cos square x। और डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम साइन स्क्वायर Yes, एक्स sir. लिखते हैं ना, लिख बराबर। सकते हैं। अब क्या करें बोलो? अभी जो इंटीग्रेशन Separate। करना है तो सेपरेट डिवीजन करें। यस, कैसे डिवीजन करोगे? Yes. जरा ऊपर खिसका के cos देखो। by sin कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? कॉस ये बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 साइन एक्स सेपरेट करो। कॉस बाई साइन तो कॉट होता ही है ना, एंड 1 बाई yes sir, साइन का मतलब 1 by cos sin एक्स। cos x हो जाएगा। तो cosec cot हुआ कि नहीं? Yes. माइनस cot Yes, sir. स्क्वायर एक्स। अभी देखो cosec cot का तो इंटीग्रेशन आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिर्फ Yes, sir. प्रॉब्लम आया cot स्क्वायर के एक्स का। मैंने बार बार बोला है साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, ये सभी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है। तो Yes, sir. जैसे हमने tan स्क्वायर में करते थे, ये वैसे ही अब cot स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर माइनस 1, उसकी फॉर्मूला। Yes. तो बाहर माइनस है तो हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ने माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, Plus one. बराबर। अभी Yes, तीन sir. टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन सोचो, आ गया। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स की फॉर्मूला ही है माइनस कॉसेक एक्स। Yes, फिर sir. इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस Yes, माइनस sir. हो गया Plus प्लस minus कॉट plus एक्स, एंड इंटीग्रेशन 1 वो एक्स। x। Yes, sir. कंप्लीट हुआ ये अप टू नंबर 9। Yes, sir.
अब नए पेज पे जाओ, आगे बढ़ो जरा, तो साइन रेस टू 4x का इंटीग्रेशन आता है, वहां रुक जाना, पेज आगे बढ़ो, साइन रेस टू 4x, हाँ सर। साइन रेस टू 4x, हाँ सर। साइन रेस टू 4x, उसका क्या इंटीग्रेशन करोगे? तो देखो मैंने क्या लिखा है, पावर, हाँ पावर 4 आया, तो मैंने सोचा कि साइन स्क्वायर एक्स तो हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीपल फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यस सर। इसके बाद मैंने फॉर्मूला लिख दी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना फॉर्मूला अपने पास, यस सर। यस हाँ सर, सर। ये फॉर्मूला। उसका होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर होल स्क्वायर का एक्सपांशन करें, नीचे 1/4 हो जाएगा, वो बाहर लिख देते हैं हम लोगों हाँ ने, तो बाहर निकाल लेंगे उसको। के बाद एक्सपांशन कर दिया, यस सर। तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, एक्सपांशन कर दिया, हाँ सर। कोई शक होना नहीं चाहिए। नो सर। अच्छा अभी आप देखोगे तो 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos 2x का भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल वाली फॉर्म है, यस और सर। जो थर्ड हाँ फॉर्म सर। है, थर्ड टर्म, वो पावर फॉर्म हो गया, तो उसका Yes. प्रॉब्लम होता है, तो वो तो हमने सॉल्व कर दिया था कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर x हो तो मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी अभी आ गई है, cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ Yes, sir. से चेंज है, x की जगह 2x, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2, बोलो अब कंप्लीट, बराबर पता चला? Yes, हाँ sir. सर पता चला। बस इसके बाद तो 2 डिनोमिनेटर में आया है, तो एलसीएम निकाल दो और बाहर 1/8 कर दो, Okay, sir. बराबर। अभी हाँ, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एलसीएम में है तो 2 1 जा 2 होगा ना, और हाँ। पीछे पीछे वाली टर्म में, लास्ट वाली टर्म में 1 है, तो उसको मिला के 3 लिखा, थर्ड जो Yes, लिखा ना, sir. तो उसके साथ ऐड कर दिया, फिर माइनस 4 cos 2x होता है, प्लस cos 4x है, Yes, sir. it's a easy question, and then after you go by integration formula, 1/8 as it is, integration 3 का integration 3x, Yes, sir. minus 4 और 4 cos cos 2x का sin 2x by 2 sin 2x by 2 cos 4x plus sin और sin 4x 4x। by 4, तो Yes, हो sir. गया 3 Easy. by 8x minus 4 by 16, मतलब 1/4 sin 2x, फिर बाहर वाला 1/8 हर एक साथ प्रोडक्ट करना है, वो मैं Yes. कर रहा हूँ, इसीलिए आंसर दिखाई देगा 1/32 into sin 4x, यस सर। Clear, sir. समझ में आया ना बराबर? हाँ सर। हाँ, sir. देखो हर एक टर्म में नया नया है, मैं बार बार बोलता हूँ यही बात, घबराता Yes. हूँ ऐसा नहीं सोचना है, मैं हाँ। आपको घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है वो सही है, जो ये बात आ रहे हो है, सर। Yes. हाँ वो जो है बात, इसमें तो वैसा ही बोलना तो पड़ेगा ही नहीं, यस सर। इसको मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं डरा रहा हूँ आपको, Okay, sir. नो सर, आप कहाँ डराते हो सर? नहीं ऐसा, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक बार मैं बोलता हूँ देखो इसमें नया आ गया, अभी ये क्या करोगे, कैसे करोगे, तो आपको बोध पाठ क्या लेना है, सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट करने की है, और जो जो हमने सम बताए यहाँ पे, वो हर एक सम को 2-3 दफे करते रहो, और जो मैं उसके पैरेलल ही सम प्रैक्टिस में दूंगा, तो वो आपको गिनना ही चाहिए, Okay, तो sir. इतना मेहनत करोगे ना तो ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, Yes, और sir, उसका ठीक है। वेटेज भी एग्जाम में 14 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का, सर हाँ 14 मार्क्स? 14 मार्क्स, तो वही तो कह रहा हूँ, Very सोचो पहले, इसीलिए मैं आपके ऊपर ये दबाण कर रहा हूँ कि फॉर्मूला को पढ़ो बराबर ठीक तरह से, याद भी रखो, Yes, sir. हाँ नहीं याद होता है तो बादाम पिस्ता का दूध पियो सुबह में, हाँ Yes, sir, दूध पीते हैं रात को। करना रात को तो रात को, लेकिन बादाम डाल के थोड़ा दूध पीना ही चाहिए, है भाई, मम्मी पापा को भी बताना, हाँ ये चाहिए, अभी याद शक्ति आपकी बढ़नी Yes, चाहिए, sir. हाँ एकदम सर याद से। ओके, चलो अभी 11 सम में आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. इंटीग्रेशन cos रेस टू 4 पावर है और 2x, अभी हमने sin 4x किया, वैसा ही सम हो गया, Yes, sir. Same. तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला थोड़ी अलग ढंग से होगी, वहां माइनस आता था, 1 यहाँ माइनस प्लस में होता आ था, जाए.
यहाँ 1 प्लस होगा। तो देखो आगे बढ़े, इसमें आराम से देख सकेंगे आप। मैंने लिखा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, जैसे उधर लिखा था। फिर हमने फॉर्मूला लिख दी, जैसे cos स्क्वायर x की आती है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो cos स्क्वायर 2x का आएगा 1 प्लस cos 4x बाय 2 और उसका होल स्क्वायर, है ना बराबर। हाँ सर। अच्छा, अभी देखो 1/4 बाहर निकालो, स्क्वायर एक्सपांशन करते हैं हम। हम्म, फिर वैसे का वैसे ही बात आ गई, 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। मल्टीपल का तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पावर फॉर्म जो आया ना cos स्क्वायर, उसका तकलीफ है तो उसको भी मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने किया, तो कैसे होगा, 1 प्लस cos डबल होता है ना, तो 4x का डबल 8x हुआ यस सर। बाई 2, और इसके बाद 2 को एलसीएम तरीके से निकाल दो, ऊपर जाने दो, ये तो फॉर्मूला लिखी है शायद आपके लिए। हाँ 1/8 दिखाया ना, तो 2 Yes, sir. एलसीएम निकालने से बाहर 1/8 आएगा। 2 1 जा 2, पीछे वाली टर्म में 1 है तो उसको मिला के 3 प्लस 2 2 जा 4 cos 4x एंड प्लस cos 8x। अब हर एक टर्म को आप सेपरेट इंटीग्रेशन करो, आ गया। देखो 1/8 बाहर था, 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो 3/8x प्लस 4/8 का मतलब 4/8 का मतलब तो 1/2 होता है, लेकिन वो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 आएगा ना, यस सर। तो इसके 4 साथ into 8 लिखा, पता चला बराबर। यस सर। वैसे लास्ट वाली टर्म में sin 8x/8 आएगा और बाहर 1/8 है तो वो 1/64 हो गया। यस सर। समझने में एक दफे जो समझ पड़ जाए ना, तो ये सम में कुछ दम नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। हर एक सम में देखो, ये पहले वाला आ गया, इसमें समझ आ गई, तो ये कितना सिंपल लगा। हाँ सर। हाँ ये है ट्रिक, यही है। देखो अभी इसके बाद वाला में भी आपको ध्यान में आ जाएगा, जरा बस इसके ऊपर सोचो, आगे मत बढ़ना। इंटीग्रेशन लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी। आप थोड़ा सोचो कि क्या करें हम, तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा है ये। जो आप लोगों ने अभी अभी जो सम किया था ना, उससे तो इसमें कुछ ही दम नहीं है। हाँ बोलिए। सर sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। हाँ फिर 1 माइनस मतलब 1 स्क्वायर माइनस उसकी फॉर्मूला बन जाएगी, फिर एक 1 हाँ। प्लस x और एक 1 माइनस cos x, तो अप डाउन कट जाएंगे और 1 माइनस cos x बच जाएगा और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह बोला आपने। साइन Yes, sir. स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका sir. 2 फैक्टर पड़ता है तो 2 फैक्टर पढ़ दो। 1 प्लस कॉस एक्स कट हो गया तो रहा 1 माइनस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर लो, आराम से आ जाएगा। 1 का Yes, sir. माइनस है, X कितना सिंपल है। माइनस साइन एक्स आ जाएगा। हाँ अभी Very यहाँ easy. से, हाँ यहीं रखो अभी, ये 13 वाला बोलो। सिंपल था ना Yes, sir. यस सर, वेरी सिंपल। अभी 13 में आगे बढ़े तो क्या करें, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा। तो एक ही तरीका है हमारे पास। सर दोनों तरफ फॉर्मूला लग रहा है, cos अल्फा माइनस cos बीटा हाँ अपॉन। हाँ हाँ, मतलब अभी जो आ रही है ना फॉर्मूला, आप सुनो ध्यान से। जो Yes, sir. मैंने 4 फॉर्मूला जो लिखाई थी ना पहले, यस तो सर। उसमें क्या था, प्रोडक्ट टर्म को हमने समेशन और डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यस सर। हाँ अभी उसके हिसाब से और 4 फॉर्मूला आती है। इसमें क्या क्या होता है, हाँ आपको याद आया आया होगा, cos Yes, sir. c हाँ सर, plus माइनस cos 2 d, साइन अल्फा cos प्लस बीटा c बाई 2। माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, ऐसा है ना 4 फॉर्मूला। यस सर। हाँ तो हाँ सर, उसमें याद है। cos c माइनस cos d वाली लागू पड़ेगी, तो लिख लो। अगर आपको पता नहीं हो, याद नहीं हो, तो जरा लिख के चले आगे। लिखो, मैं लिखवाता हूँ। ओके। फॉर्मूला cos c माइनस cos d इक्वल टू cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन, माइनस बाहर लिखो, 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। फिर से बोलता हूँ, बराबर ध्यान से सुन लो।
और चेक भी कर लो सही लिखा है कि नहीं आप लोगों ने, cos c माइनस cos d तो इक्वल टू -2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। लिख दिया बराबर? हाँ सर। अच्छा, अभी इसके बारे में सोचे, जरा ऊपर से जाने दे। हाँ बस बस, अब देख सकते हैं cos 2x minus cos 2 alpha just like cos c minus cos d, so use it। हाँ सर वही है, अल्फा जो है अपना ए और बी माइनस, हाँ तो -2 साइन, हमने बोला c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ 2x है c, d है 2 अल्फा, तो 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू अदर फॉर्म साइन ऑफ 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2, है ना बराबर? डिनोमिनेटर Yes, में sir. भी, डिनोमिनेटर में भी वही है, लिखो देखो डिनोमिनेटर सम -2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन, भाई आप पावर कट થઈ જાય બંધ કરી ચાલુ कर दे પેલું, બસ 8 જ મિનિટ છે આમાં। તો શું આવ્યું? -2 સાइन x પ્લસ અલ્ફા બાઈ 2 साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2। Yes, sir. Clear. हाँ, अभी देखो इसमें क्या हुआ, -2 कट हो गया, फिर वो 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, इसमें से 2 निकल गया तो साइन x प्लस अल्फा आएगा, साइन Yes, x sir. माइनस हाँ अल्फा। सर। और डिनोमिनेटर में देखो साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब उसको किस तरह से सॉल्व करें? ऊपर भी प्रोडक्ट ऑफ साइन है, नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ साइन है, हमको ये Yes. क्वेश्चन तो चाहिए नहीं, क्वेश्चन का तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास फॉर्मूला, तो अभी क्या Yes. करें? तो जैसे आप लोगों ने बोला था साइन 2 थीटा, जरा मैं बोलूं वो सुनो पर है, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बोलते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पता है ना बराबर? Yes, Cos sir. theta. ये बताइए. हाँ सर ये पता है। साइन 2 थीटा है तो अगर हम सिंपल साइन थीटा की इसी टाइप की फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखोगे? 2 sin theta by 2 2 एंड cos थीटा cos बाई theta by 2, 2. ऐसा आएगा ना? साइन 2 Yes. थीटा है तो 2 साइन Yes, sir. थीटा cos थीटा होता है, मतलब कि 2 थीटा का हाफ होता है, तो एकला साइन थीटा बोलेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? यस। Yes, तो देखो sir. ऊपर जो है ना साइन x प्लस अल्फा, उसको मान लो कि वो साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकोगे कि नहीं? हाँ सर। तो वो हुआ यहाँ 2 साइन sir, x लिख प्लस सके। अल्फा बाई 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2। सेम वे दूसरी टर्म है साइन x माइनस अल्फा, तो उसको भी हम 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। एंड डिनोमिनेटर में जो है वो तो टर्म वेट कर रहा है उसका, अभी उसको कैंसिल कर दो, कट होने का है ना? क्या तो होगा? अभी ऊपर जाने Yes, दो, sir. अब क्या होता है आगे बढ़ो, पेज ऊपर जाने दे पंकज। Yes. सर ऊपर भेज दिया है. हाँ हाँ आएगा आएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको। अभी हम सोचे तो 2 2 है बाहर, देखो एक पहला वाला नंबर में 2 बचा, एक लास्ट वाले में 2 बचा, तो 2 और लास्ट में भी हाँ। बचा है, चला गया। Yes. नहीं मैं यही हूँ, यहाँ वो चला गया. जल्दी आ भाई, मजा आ रहा था। आ गया आ गया. फोर्टी 46 पेज, जरा नीचे उतार, अभी नीचे चाहिए हमको थोड़ा। हाँ हाँ नीचे नीचे, अरे भाई ऊपर जा रहा है, हाँ हाँ ऐसा लाने, पेज नीचे उतरना चाहिए, मतलब कि 47 पे 46 पे जाओ, इससे ज्यादा नहीं उतरेगा। सर उतरेगा लेकिन अटक गया. आ, आपको तो टाइम ही लगता है, थोड़ा रिपेयरिंग करवा ले।
सर बराबर है मेरे यहाँ से तो। तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जो खिसक सके तो ला दो ना 46 वाला पेज। सर किसका के नहीं आएगा आ वो। गया, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओहो, हाँ, तो एक ओहो, दफे तो हम लोगों ने देख लिया ना, वो साइन साइन वाला कट हो गया। बोलिए। यस सर। तो अभी जो टू टाइम बचा है वो 1 2 को बाहर निकाल दो, और 2 टाइम cos x प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा, जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ स्क्रीन पे दिखाई रहा है, ये बचेगा। यस सर। यस सर अभी दिख देखो, रहा है। हाँ बस इतना ही, बस बस आ गया, वो तो कट हो गया, और सिर्फ एक 2 बाहर निकाला, दूसरा 2 उसके साथ मिला दिया, बस वही है इसमें। हाँ, अभी आगे जाने दे पंकज, कोई बात नहीं, 47 पेज आने दे। तो अभी क्या हुआ, बाहर एक 2 लिखा और यहाँ फॉर्मूला लागू पड़ी गई 2 cos अल्फा cos बीटा की। 2 cos अल्फा cos बीटा फॉर्मूला होती है ना, वो लागू अरे पड़ेगी। पंकज। अरे मैं क्या करूँ यार। तो cos अल्फा cos बीटा की फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगी। यस सर लग। आज तो एग्जाम है 12:30 बजे। सर 1 बजे 1। हाँ, Yes, 1 बजे sir. तो 1 बजे चालू करेंगे। कौन सी एग्जाम है पता है ना? सर मैट्राइसिस से कैसी बात कर रहे हाँ, हो? मैट्राइसिस Yes, थर्ड sir. चैप्टर। यस क्या सर। मैट्रिसेस नहीं है? यस हाँ? सर। अरे मैट्राइसिस की एग्जाम है। क्या अरे बोलती पता है यार, है? किसी भी में। आयुषी को आश्चर्य लगा। नहीं सर, खबर है। सर वो न्यू बात है ना, न्यू बात। मैंने हाँ, आज क्या करने का है वो पता है ना? मैंने बोल दिया था, वो पीडीएफ मत भेजना, सिंपल सर पेज। आपको हम लोग फोटो यस खींच सर के इमेज भेजेंगे, में फोटो। भेजेंगे। हाँ, और वो अपने ग्रुप में ही भेज देना, मेरे Yes, ग्रुप sir. में, बराबर, मैं चेक Okay, कर sir. लूंगा। ठीक बस सर। हाँ, नहीं तो अपना आप हर एक का नंबर भी है, सेपरेट में भी भेज सकते हैं आप, है? क्योंकि हाँ सर, देखो, ग्रुप में मैसेज एक भेजते हैं। एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सर सेपरेट भेज देंगे, आपको कोई काम करेंगे। ओके हाँ सर, ओके सेपरेट ओके ओके। चलो, अभी क्या हुआ वहां, जो हम लोगों ने लाया था 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2, उसकी फॉर्मूला हो गई 2 cos ऑफ एडिशन। यस सर। तो x प्लस अल्फा बाई 2 और x प्लस माइनस अल्फा बाई 2 दोनों को मिलाओगे तो अल्फा बाई 2 कट हो जाएगा, और x बाई 2 का x हुआ, प्लस उसका डिफरेंस करोगे, ये आप देख पाओगे अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बस, नीचे आओ तो बस आ गया ना, जो वो फॉर्मूला आई ऊपर देखो, 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2 है, उसकी जगह पे हम Yes, क्या sir. लिख सकते हैं, वो प्रोडक्ट फॉर्म आया था ना मेरा, वो 4 पहले जो मैंने फॉर्मूला Yes, sir. बताई थी, उसमें 2 cos अल्फा हाँ सर। बस वही फॉर्मूला कम में लेना है। कॉस ऑफ एडिशन करना है तो एडिशन करने में से अल्फा बाई 2 निकल जाएगा, माइनस प्लस है तो, और x बाई 2 मतलब x हो गया, फिर प्लस करके कॉस ऑफ डिफरेंस करना है तो x बाई 2 कट हो जाएगा और अल्फा बाई 2 डबल हो जाएगा, मतलब क्या अल्फा होगा। तो इसीलिए ये 2 Yes. टाइम इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा आया, बराबर। अभी दोनों का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है, तो हम लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x 2 sin x हुआ, बाहर 2 है तो फिर 2 अंदर Yes, लिया। अभी देखो इंटीग्रेशन cos अल्फा का sin अल्फा मत लिख देना, cos अल्फा तो कांस्टेंट है। हाँ वो सर कॉन्फिडेंट है ये, मैं लिख देता है हाँ, पहले। तो लिख ही देते हैं आप लोग, तो cos अल्फा को बाहर निकालो, फिर अंदर कोई बचा नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 Yes. का इंटीग्रेशन x वो तो लिखना पड़ेगा। Okay. पता चल गया कैसा हुआ ये। Yes, sir. पता चल गया। हाँ सर। अभी नंबर 14 पे चले। पंकज थोड़ा नीचे है और क्या। हाँ भाई। हाँ, बस बस क्वेश्चन तो आ गया है ना, क्वेश्चन हाँ, को दिखा करो पहले। देखो इसमें भी नए ट्रिक है, ये तो समझना ही है। देखो इसमें cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin 2x। देखो ये सम जो आ रहे हैं सब 1 बाई 1, आपको ऐसा सोचते होंगे कि साहब को कैसे आइडिया आ गई, कैसे ये सोचता है ये इस तरह का, ये बार बार आपको बताएगा।
हमको क्यों नहीं एक्सपीरियंस है आपको आएगा? सर, ये क्यों एक्सपीरियंस। आएगा, क्यों ऐसा विचार आएगा? क्योंकि आप नहीं सोच पाओगे और हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप सोचते ही रह जाओगे कि साला ये कैसे हाँ आ सर, ये क्या हो तो गया सर, ये क्या ये कर दिया। हाँ यही बात है। जादू। तो ये सभी प्रैक्टिस से होता है भाई। हम लोगों ने बहुत सालों से पढ़ाते हैं, हाँ, तो यस इसीलिए सर। उसका प्रैक्टिस इतना हुआ कि हम रकम देख के ही पता चल जाते हैं हमको कि ये ट्रिक आजमाना है। आपको ये पहली दफे कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ये आइडिया इतनी जल्दी नहीं आने वाली। Yes, तो sir. इसीलिए मैं यस कह रहा हूँ कि हर एक सम के साथ आपको अटैचमेंट लाना पड़ेगा, तभी आपको ध्यान में आएगा। देखो इसमें भी नया ट्रिक है, आप बाद में कहोगे कि यार ये कहाँ से आ गया। देखो मैंने क्या किया है वो मैं बताऊं। cos x माइनस साइन एक्स ऊपर है, नीचे 1 प्लस यस साइन 2x है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस साइन 2x, तो मैं सोचता हूँ साइन 2x का 2 साइन एक्स cos x पता है ये आपको, और 1 की जगह में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो हो गया ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया यस सर। आप यही सोचने लगोगे कि ये साला ये कहाँ से आ गया, ये कैसे इसने सोचा। यही मैं कह रहा हाँ हूँ। सर, अब आ गया। साइन स्क्वायर अरे एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत और 2 बहुत साइन एक्स कॉस एक्स। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये मैं कह रहा हूँ वो तो देखेंगे तो बाद में तो पता ही चलता है ना कि बराबर है। गलत थोड़ा लिखा है कि आप गलत बोलोगे, सही है तो सही बोलोगे। लेकिन जो इसमें आइडिया क्यों ऐसा ही लिखा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हर एक सम में देखो हमने नया नया ट्रिक आजमाया है। तो इसमें क्यों ये ट्रिक आजमाया कि मैंने देखा कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो ब्रैकेट में है, उसका ही डेरिवेटिव ऊपर है। इतना Yes. सिंपल। साइन यस एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो अभी आगे की सोच तो बहुत आसान हो गई। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह टी सपोज कर लो, तो डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर यस लिख सर। दिया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर, यानी कि 1/t² का इंटीग्रेशन। वो तो हमको पता ही है -1/t, बिकॉज यस 1/t का डेरिवेटिव -1/t² है। यस और उसके बाद वैल्यू लिख दो टी की, तो कितना आसान हो गया, -1/sin x प्लस cos x। तो ये मैं जो कहने जा रहा हूँ तो ये है कि हर एक सम में नई नई ट्रिक आती है, वो बार बार आपको प्रैक्टिस करने से मुहावरा होगा और आप कर सकोगे। आप ओके मुझको सर। पूछोगे कि भाई सर आपने कैसे ऐसे सोच लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, एक ही उत्तर मेरे पास होगा कि मैंने बहुत से प्रैक्टिस की है, तो एक्सपीरियंस इसमें बोल जवाब दे रहा है कि पता ही चल जाता है कि सर ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन 2x है। मैं कुछ आगे इसमें कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि लेट्स सी उसका प्रोडक्ट होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर लिखने में तुरंत पता चल जाता है कि उसका ही तो डेरिवेटिव है, तो क्यों ना ये ट्रिक अपनाया जाए। यही है, समझे आप लोग सब। यस सर। यस सर समझ गए। ऐसा ऐसा होता है, हाँ सर, होएगा ही। समझ गया, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, बस उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो दिमाग में Yes. सेट होगा, वरना ये तो आएगा भी और चला भी जाएगा। इतना जल्दी आपको दिमाग में भी आज सेट हो जाएगा और फिर से आप गिनने लगोगे ना तो फिर इधर उधर दिखने पड़ जाओगे। हाँ, sir. इसका सम जो मैंने अभी अभी बताया 14 तक बताया, बराबर है। तो यस 14 तक सम का जो मैंने एक्स्ट्रा सम में भी लिख दिया है थोड़ा, तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा सम का भी एक फोटो पढ़ के मैं भेजूंगा, बराबर। ओके सर। हाँ सर। हाँ तो बाद में मुझको उसका सॉल्यूशन कल, अगर कल, हाँ कल नहीं परसों है ना, अभी तो परसों यस भी सर। नहीं आएगा, आज तो शुक्रवार हो गया, कल सर शनि। नो सर, अब सीधा सर ट्यूसडे। हाँ डायरेक्ट मंडे या ट्यूसडे को आएगा, बराबर पीरियड। यस सर। Yes. हाँ तो तभी ये कंप्लीट करके देना। मीनवाइल तो आज आपकी एग्जाम है, उसकी प्रैक्टिस करो, अभी जो करना है वो। यहाँ हम स्टॉप कर देते हैं यस सर, थैंक यू सर। और 1 बजे, हाँ 1 बजे आपको ज्वाइंट होना है फिर से। वो प्रियंका मैम लेगी टेस्ट, बराबर। 1 बजे ओके सर। पेपर आ जाएगा और 2 बजे कंप्लीट करके मुझको भेजना है आपका सॉल्यूशन, यस सर, बराबर फोटो है। भेज ही देंगे। ओके ओके ओके, Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू Bye. थैंक यू। एक्सरसाइज पूरी कर लिया। 30 40 15 सम तो मन थी, 14 सम
रमारता काम करવું પડે। सर 14 एग्जाम करवाने इंटीग्रेशन के हाँ, अगर ऑनलाइन में बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या है, क्यों होता है सर, कि उन लोगों के पास भी स्क्रीन पे है